جس وقت چاہیں جہاں چاہیں جتنی دیر کے لیے چاہیں میرے آقا جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بندہ اپنی ایسے ہتھیلی کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرما دیجیے گا حضرت۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حاضر و ناظر تو اللہ کی ذات ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو صحیح جو بات ہے حضرت یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں معاملہ کیا ہے حافظ صاحب، حاضر و ناظر کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے حضور سید عالم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، اور میرا آقا اس کو دیکھتے ہیں، اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ اللہ، کائنات کی ہر شے حضور کی بارگاہ میں ڈیوٹی لگاتی ہے، اللہ عرض کرتی ہے، حاضری دیتی ہے، کائنات کا چپا چپا مصطفیٰ کی نگاہ کرم میں ہے۔ مجھے یہ بتائیں جب غوث اعظم جو میرے آقا کی اولادوں میں ہیں وہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں، تو جب حضور کی اولاد کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی پر ہے، تو ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ کیا کہنے۔ اور کوئی کہ یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا؟ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے، یہ تو میں پہلے محبت کی بات کرتے ہوئے لا ادھر ہی رہا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب، اے غیب کی خبر دینے والے، بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہی ہے حاضر و ناظر بنا کر۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 45 کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر۔ اور باقی ساری کی ساری دنیا نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے ہو۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ یہ ہے حاضر و ناظر کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے بعد بھی حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہیں تو اپنی قبر انور میں ہی موجود، لیکن پوری دنیا، پوری کائنات، پورے امتی، ان کے اعمال، افعال، اقوال اس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں یا اس طریقے سے آپ کے سامنے ہر وقت موجود ہیں کہ جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حاضر و ناظر کا جو عقیدہ نکال لیا گیا اور اس پر قرآن کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا، کیا یہ عقیدہ اسلام کے مطابق لگتا ہے؟ اب جیسے یہ شاہد کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اس شاہد کے معنی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر و ناظر، یعنی شاہد مشاہدہ کرنا، شاہد گواہ بن جانا، دیکھنا باقاعدہ معاملے کو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جب اللہ نے اپنے نبی کو شاہد بنایا ہے، لہٰذا اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ہر معاملے سے، ہمارے قول، فعل، نیکیاں، گناہ، ہر عمل سے حضور باخبر واقف ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک سے جب بھی کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے، اصول استدلال میں یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ میرا کوئی بھی نتیجہ اگر قرآن سے ہی متعارض ہو کے کھڑا ہو جائے گا وہ نتیجہ باطل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے اس تعارض کی طرف نظر نہیں کرتے۔ دیکھیے گا کہ کوئی بھی گواہ ہے، آنکھوں دیکھا جس نے مشاہدہ کیا، اس کو بھی عربی میں شاہد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں شاہد صرف اس کو نہیں کہتے جو آنکھوں دیکھا مشاہدہ کرنے والا، اچھا، بلکہ قطعی علم کی بنیاد پر بھی جب آپ گواہی دے دیتے ہیں تو اس کو بھی شاہد کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اگر ہم شاہد کا معنی یہ لے لیں کہ اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، تو دیکھیے گا قرآن خود متعارض ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیے گا شاہد کے لفظ سے اگر آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ شاہد کے اندر مشاہدہ ہونا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر شاہد کا اطلاق ہی باطل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود شاہد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ صحیح ہے۔ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اور جتنے بھی علم والے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کس چیز کے اوپر؟
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे वो गवाह है। सवाल ये है कि जितने भी इल्म वाले अल्लाह ताला की वहदानियत के मुक़िर हैं, इकरार कर रहे हैं, ईमान लेकर आ रहे हैं, अल्लाह की ज़ात का मुशाहिदा करके बात कर रहे हैं, नहीं, इल्म क़तई की बुनियाद पर कर रहे हैं, मुशाहिदे की बुनियाद पर नहीं कर रहे। तो अगर हम ये बोलें कि शाहिद का ये मतलब होता है कि उसमें मुशाहिदा ज़रूरी है, तो सब कुरान मुतारिज़ होकर खड़ा हो जाएगा। हमारी तो शहादत, पहली शहादत जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इस्तिदलाल की बुनियाद पर, क़तई इल्म की बुनियाद पर हम क्या ये शहादत देते हैं, मुशाहिदाती तौर पर नहीं देते। दूसरी में मैं दलील दे सकता हूँ कि अगर शाहिद होना मुशाहिदे को मुस्तलज़म है, तो अल्लाह ने हमें भी तो शाहिद करार दिया है। अच्छा, अल्लाह बयान फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। अल्लाह ने फरमाया मैंने आपको तुम्हें उम्मत वस्त बना दिया, अब तुम अलन्नास तमाम लोगों के लिए इनके ऊपर शुहदा है। सवाल यह कि इन शुहदा में मुशाहिदा दाखिल है, तो ये तो फिर मेरे लिए भी शान होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए कि हर उम्मती के लिए मुशाहिदा ज़रूरी है पूरी दुनिया के हर लोगों का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुरान पाक से कोई भी नतीजा मुतारिज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल करना ज़रूरी है, लिहाजा ये नज़रिया नहीं ठीक। अच्छा चलें, ये तो आपने बयान कर दिया कि जनाब शाहिद के लिए मुशाहदा होना ज़रूरी नहीं, इल्म क़तई होगी, इस बात पर भी क़यामत में गवाही दे सकते हैं। लिहाजा इस आयत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हर मामले को हर वक्त सामने रखना ये ज़रूरी नहीं हुआ, कुरान से अलग हो जाता है। ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट कुरान के खिलाफ हो जाता है। अच्छा। एक तो ये तो अभी मानवी लिहाज से हमने बहस की, डायरेक्ट कुरान के खिलाफ कैसे हो जाता है। आप देखिएगा सूरह माइदा पढ़ के देखें, जो 100 के कलाम चल रहा है वही आपको बता देगा। अल्लाह बयान फरमा रहे हैं यौमा यजमाउल्लाहु रसूल, रोज़े क़यामत तमाम मेरे रसूल खड़े होंगे और अल्लाह की तरफ से उनसे पूछा जाएगा मादा उजिबतुम, कि आपके बाद, आपकी वफात के बाद जो उम्मतें आगे बढ़ी हैं, इनके हवाले से आपके पास क्या इल्म है, क्या नहीं है, इन तक दावत पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आगे की बात है। ये मैं आगे की को कह रहा हूँ, अभी बताता हूँ। अच्छा। तो तमाम के तमाम रसूल वहां पर एक ही जवाब देंगे, ला इल्मा लना, अल्लाह बात का हमें कोई इल्म नहीं। सही, जो कुरान की नस है। सही। अच्छा, इसके अंदर बाद की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया के अंदर तो शाहिद आप बिल्कुल है, तो कुरान की नस मौजूद है। सही। फिर 100 के कलाम आप खुद देखें कि ये उसूल बयान करके बरोज़े क़यामत तमाम रसूल यही जवाब देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खास तौर पर वाक़या जिक्र फरमा दिया कि बरोज़े क़यामत ईसा करीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दुनिल्लाह, जी क्या आपने ये दावत दी थी कि मुझे खुदा बना लो या हमारी वालदा को? तो ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन आजिज़ होंगे, अर्ज़ करेंगे अल्लाह हमने ऐसी कोई दावत नहीं दी। इसके बाद आप जुमले पे गौर कीजिएगा, कुरान पाक कहता है कि कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम, हम शहीद थे जब तक हम उनमें जिंदा थे। सर अल्फाज में हम शहीद थे जब तक हम उनमें जिंदा थे। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, अल्लाह जब तूने मुझे मुतवफ़्फ़ी कर दिया, कुन्ता अंता रक़ीबा अलैहिम, अब तो मामला तेरे पास है। ये कितनी प्यारी आयत है जो इस बात को मुतय्यन कर रही है कि ये शहादत दुनिया के अंदर तो शाहिद थे, अल्लाह के नबी ईसा करीम अलैहिस्सलाम भी शाहिद थे, शहीद थे, लेकिन बाद के जो मामलात थे, जिसे हम कहते हैं अल्लाह के नबी के बाद, वफ़ात के बाद के जो दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर शहादत का इतलाक़ इस तरह कर देना वो बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ होता है। यही चीज़ आप देखेंगे तो हदीस भी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बरोज़े क़यामत जो जुमला ईसा करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हम भी वही अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह जब तक हम उनमें मौजूद हैं मामला तो हमारे सामने थे। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने हमें अपने पास बुला लिया तो बाद के मामला तो तेरे सुपुर्द ही। सही। तो इसलिए कुरान के ख़िलाफ़ नहीं जानी चाहिए बात, कुरान पाक असल है, इसी के बाद फिर सब चीज़ों को हमने देखना होता है। अच्छा, हयात पर जो आप कह रहे हैं कि शाहिद का इतलाक़ हो सकता है नबियों पर कि वो शाहिद हैं हयात पर, लेकिन यहाँ पर भी शहादत से मुराद वो तो नहीं कि हर वक्त उम्मती के मामला सामने रहते हैं? नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं है। देखिए ये तो पूरे कुरान पाक का मिसाल है। कोई भी अल्लाह के रसूल आते हैं वो एक दुनिया के, मैं इसको थोड़ी तफसील कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। शहादत दो चीज़ें हैं जिसको कुरान ने जिक्र किया, एक शहादत है दुनियावी और एक शहादत है उखरवी। अच्छा। इन दोनों चीज़ों को कुरान ने जिक्र किया। दुनियावी शहादत कैसे अल्लाह बयान करते हैं, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद बना करके इस दुनिया में भेजा। सही है। और आखिरत की शहादत कुरान जिक्र करता है वजिअना बिका अला हाउला शहीदा, अला हाउला, ये पूरी आयत अगर आप पढ़ दें, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, शहीद, बरोज़े क़यामत अल्लाह कह रहे हैं कि हर उम्मत से
शुहदा को बुलाएंगे, सही। वजीना भी का, और ए नबी आपकी जो गवाही होगी अला हाउलाई, उन तमाम के ऊपर होगी। तो एक है बरोज़े क़यामत की शहादत, जिसको कुरान पाक जिक्र करता है। ये दो चीजें हैं, एक दुनिया की शहादत है, एक उखरवी शहादत है। अच्छा अच्छा, सही। दुनिया की जो शहादत है, ये शहादत का यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह की गवाही देना, जैसे अल्लाह ने बयान किया शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। सबसे पहले शहादत किसने दी? अल्लाह के वाहिद होने की। अल्लाह के रसूल ही देते हैं अल्लाह की वही से, सही। खुद ईमान लाते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आमन रसूल, सबसे पहले रसूल ईमान लेकर के आते हैं। सही। तो सबसे पहले वो शाहिद बनते हैं, अल्लाह के अहकामात के शाहिद बनते हैं, अल्लाह की ज़ात के शाहिद बनते हैं, उसकी सिफात के शाहिद बनते हैं, जन्नत के दोज़ख के। फिर इस शहादत को उम्मत के ऊपर सपुर्द कर देते हैं। सही। फिर इनके दरमियान एक रसूल की बड़ी जद्दोजहद होती है, वो फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिल सईर, दो गिरोह अलग करके चले जाते हैं, किस पर जजा होगी, किस पर सजा होगी, और वो फैसला इस दुनिया में हो जाता है। इस चीज़ की भी शहादत रसूल देते हैं, यानी कि फरीकुन फिल जन्ना की शहादत भी रसूल देंगे कि ये वो गिरोह है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की अजाब की शराइत पूरी हो चुकी है। तो ये शहादत दुनियावी इस माना के अंदर है। और आखिरत के अंदर जो शहादत है वो इल्म क़तई की बुनियाद पर शहादत होगी कि अल्लाह ने जिस तरह अपने कलाम के अंदर पिछली अक़वाम का जिक्र कर दिया, तो उस इल्म क़तई की बुनियाद पर पिछली अक़वाम पर भी हुज्जत कायम की जा सकती है कि हाँ भाई हमें अल्लाह की तरफ से बता दी गई थी बात कि हर रसूल ने अपना हक अदा किया तबलीग का, ऐसा नहीं कि किसी ने कोताही की थी। तो इल्म की बुनियाद पर शहादत है आखिरत की, और ये शहादत है दुनियावी। इन दो शहादतों का कुरान ने जिक्र किया है। इसके अलावा अगर आप बोलें कि कोई भी शख्स दुनिया से चला जाए, इसके बाद का जो लम्हा है यहाँ की कोई शहादत, ये कुरान के खिलाफ हो जाएगी। जैसे मैंने आपको सूरह माइदा की दो आयतें बयान की हैं कि अल्लाह के रसूल जिक्र करेंगे ला इल्म लना, ईसा करीम अलैहिस्सलाम जिक्र करेंगे अल्लाह जब तक हम दुनिया में थे तो शहीद थे, शाहिद थे, उसके बाद के मामला तेरे सब। लिहाजा ये बड़ी आराम से आपको समझ में आ जाएगी शहादत के मामला। अच्छा, अभी जो आपने कहा बात वो वहाँ से कुछ और निकलती चली जा रही है। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयकुलु माज़ा उजिबतुम, ये बाद की जिंदगियों की बात चल रही है कि उम्मती आपके इंतकाल के बाद जो लोग थे उनका मामला क्या रहा, इस पे कैसे कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि दुनियावी मामलात पे तो शाहिद रसूल होंगे ना। दुनिया के मामलात के अंदर तो रसूल शाहिद है। ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला गौर कीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह जब तक हम मौजूद थे तब के लिए तो हम शाहिद हैं, बाद वालों के लिए हम नहीं। अच्छा, तो ये जो जुमला है मादा उजिबतुम, ये दुनिया के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो शाहिद है ही। इसलिए ये ज़ाबिता अल्लाह ने पहले जिक्र किया कि हर रसूल का यही जवाब होगा ला इल्म लना। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र करके इसी मुजमल का इजमाल उठा दिया अल्लाह ने कि यहाँ किस सवाल की बात की जा रही है, और वो बात की जा रही है जब तक दुनिया की शहादत कायम होगी इसके बाद की। लिहाजा ये आयत को अपने सौके कलाम से रख के देखना पड़ेगा। अगर तो इस दुनियावी उलूम के लिए भी ला इल्म लना है तो फिर शहादत किस चीज़ की कायम होगी? तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये आयत आगे इसकी तफसील जो ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हुई है वो इसी चीज़ की तफसील है। अच्छा, काफिर किसे कहते हैं? काफिर नामो से नहीं कि देवबंदी काफिर होते हैं, अहलेदीस होते हैं, बरेलवी होते हैं, फलान। काफिर की एक डेफिनेशन है जो इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अकीदों का इनकार करे, जो नबी को आलिमुल गैब कहता हो, और आलिमुल गैब की डेफिनेशन ये हो कि हर चीज़ का इल्म था। तो हर चीज़ का तो अल्लाह को भी है, जब नबी को भी, तो अल्लाह और नबी का इल्म बराबर हो गया ना। तो ऐसा शख्स भी इस्लाम से खारिज है, ठीक है ना। इसी तरह जो कहते हैं नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं बग़ैर किसी तावील के, दो टोक लफ्ज़ों में सब कुछ अपनी क़ब्र से हर जगह देख रहे हैं, हर चीज़ का हर वक्त इल्म रखते हैं, तो ये तो अल्लाह की सिफत है। तो इससे भी इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, या मुश्किल कुशा समझना, और मुश्किल कुशा का जब माना पूछो तो ये कहना कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए, आप जब चाहें जिसकी बिगड़ी बना सकते हैं, अल्लाह ने आपको सारे इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये भी कुफ्र है।